जय गुरु जी। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना गुरु जी, मुझे आज अमृत वेला उठाने के लिए शुक्राना गुरु जी। सारी संगत परिवार को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी हेमा कैलिफोर्निया से बोल रही हूँ। ये मेरा गुरु जी के श्री चरणों में अमृत वेला शुक्राना सत्संग है। यहाँ पर 4:36 हुए हैं गुरुपा, और आज सोमवार का दिन है। तारीख है 30 जून। शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु जी, मैं गुरु जी के चरणों में, गुरु जी मुझे पढ़ा रहे हैं आजकल सरचार्ज्ड विद डिवाइन लव। तो अब मैं आगे का पढ़ूंगी गुरु जी। पहले मैं गुरु जी का पावन मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु जी, अपनी चरण शरण में रखने के लिए हमको आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। थैंक यू मेरे बाबा। आप हमारा बहुत ख्याल रखते हैं मेरे प्यारे गुरु जी, बहुत ख्याल रखते हैं गुरु जी। इतना हम भी अपना ख्याल नहीं रखते गुरु जी, जितना आप हमारा ख्याल रखते हो। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, इस बात का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हम तो अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं मेरे बाबा, आपको याद करते रहते हैं गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, हम आपका चिंतन करते हैं और आप हमारे सब चीज़, हमारे काज संवारते हो गुरु जी। आप जानते हो कि हमारी लाइफ को कैसे ठीक रखना है। हम कुछ नहीं जानते गुरु जी इस बारे में, लेकिन आप सब कुछ जानते हो गुरु जी। हम तो सिर्फ आपको जानते हैं बाबा, आपको प्यार करते हैं गुरु जी, आपको चाहते हैं। आप ही हो हमारे सब कुछ गुरु जी, हमारे सब कुछ आप हो। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो ये चैप्टर नंबर है गुरु जी's स्टे इन चंडीगढ़। और ये पेज नंबर है 56। शुक्राना गुरु जी। My mother and I were fortunate enough to serve Guruji during his stay in Chandigarh. It was then that I had the opportunity to observe him from close quarters. What people in generally saw were probably his silken robes, and assumed he liked luxury and comfort. But what we saw was completely different. The silk robes were given to him by his disciples, some as a thank you for saving someone's life, or maybe on the marriage of their children. These dresses he wore once or twice, and then gave them away as prasad to any one of his many followers. He had absolutely no possessions of his own
except except a shaving kit, which too was given by someone. He ate simple food, half of which he distributed amongst those sitting around him. Every night we would prepare his bed on the floor, for he never slept on the bed. Having been his disciple for many years before this, I had never seen this side of him. His simplicity, humility, and innocence put many of us to shame. I remember an incident where Guruji was distributing chapatis during a stopover at his village. One chapati fell down, and as my mother lifted it up to put it aside, he told her not to throw it, and then he would eat it himself. Such was his humility and kindness. He never ate before his Sangat, and never let anyone go without feeding them. No one was allowed to put money at his feet, like it is usually done in India as a sign of respect to a saint. Whatever gifts he received, from the Sangat, he would further distribute them. He kept nothing with himself. We were instructed by Guruji to bring halwa prasad for him to distribute among the Sangat. We were also told that apart from the family and one of our maids, Saraswati, no one else was to enter the kitchen while the prasad was being cooked. We took great care to follow his instructions. My mother and I were given the duty to sweep and mop the entire house where Guruji stayed, as well as wash his clothes. Since we didn't want to be later for our duties, the major work of preparing the prasad fell on our maid Saraswati, who too was a follower of Guruji. The prasad used to be brought to Mandir just before the Sangat started to arrive. I would then cool it enough for Guruji to distribute it with his hands. One day, as soon as Guruji touched the prasad, he asked me, Sukhmani, who has made the prasad today? I presumed like always. It must be Saraswati, and I told him so. No, today the prasad is not nice. Someone else has touched it. Although he still distributed it, but kept telling me it wasn't nice. I never noticed anything wrong with the texture. It looked the same as always and didn't understand what was wrong. I rang up home to ask Saraswati what had happened, and she said that the second maid had entered the kitchen for a few minutes and she did touch the prasad. I apologized to Guruji for the mistake, but was still confused as to why some people were allowed to touch his food while others were forbidden. Sensing my dilemma, he said, ਅਸੀਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਟਾਈਮ ਉਹ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ।
ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਖਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕੌਣ ਮੇਰਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। A Mahapurush cannot eat food prepared from just any hand. Some people have negative vibrations, which, while cooking, goes into the food. That food then harms us. Also, I can't eat food from certain families. Even though they may be very nice, only I know who can prepare my food and who cannot. Guruji, what is the significance of this prasad that you distribute? I asked. इस प्रसाद ਵਿੱਚ ਮੇਰੀਆਂ blessings ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ 25 ਸਾਲ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਾ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਦਵਾਈ, ਬਾਹਰ ਮਠਾਈ। The prasad I distribute to you all is charged with my power. I take all your bad karmas and give you blessings. My blessings may not be for just today, but maybe for an event 25 years down the line. He further added, eat all of what is served in the temple here itself, for here it will act like medicine. The moment you take it home, it becomes less effective. Every evening, we would bring fresh flowers for the temple as well as his room. I soon noticed that the ones in the temple stayed fresh for at least 3 to 4 days, while the ones in his room had to be changed every day. As they would get burnt. Not able to stop myself, I asked him, Guruji, why do the flowers in your room get burned around the edges, while the ones in the hall remain fresh for many days? ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗ ਦੇ ਗੋਲੇ ਵਾਂਗੂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦਾ ਹਾਂ, ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਓਵਰਫਲੋ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਹੀਟ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਫੁੱਲ ਮੁਰਝਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਸਨ 'ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਹਾਂ, ਉਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਉਡੇਲਦਾ ਹਾਂ। The power in me is like a ball of fire. The heat generated during my meditation is what causes the flowers to get burned. Replied Guruji, every night when I sit on meditation, the power in me builds up to such an extent that I have to let it overflow. When I sit on the asan amongst all of you, is when I let the power overflow. I now understood why people who came to the temple were getting cured without saying a word to Guruji. His aura was so strong that whoever came within its range instantly felt better. पानी, चाय, लंगर और प्रसाद ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਜੋ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਖਾਈ ਚਲੋ, ਮਨਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਬਾਂਧਣਾ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਬੰਦੋਗੇ ਤਾਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਦਾ। The water or the tea
that you drink here, the langar and the prasad are all infused with my power. So never refuse anything that gets served here, said Guruji. And most importantly, never share your prasad with anyone. What I gave you is for you alone and not for anyone. Not for anyone else. If you share it, then neither you nor the person you share it with get benefited. It is then that I understood the importance of everything that got served in the temple. What others thought to be normal tea and food were actually divine Amrit. Jai Guruji, Shukrana Guruji. Anantam Anantam Shukrana Guruji. Thank you, मेरे बाबा. शुक्राना गुरुजी. ये मैं मोबाइल से पढ़ रही हूँ संगत जी, तो इसमें पेज टर्न करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है. Ever since I met Guruji for the first time, I was aware of a beautiful fragrance that came from him. I used to wonder if it was something that Guruji used, maybe a perfume, but could never quite understand. Each time I pressed his feet, the fragrance would start coming from my hands as well. Everything he touched would become fragrant. Each morning, when Guruji got up from meditation, I would go into his room to clean it, and the fragrance would be so strong that I sometimes had difficulty breathing. It was as if 100 bottles of perfume had been broken in that room. Being the curious person that I am, I just had to know the source of this beautiful fragrance. I asked him, Guruji, what is this beautiful fragrance all around you? He laughed at my foolishness and said, It's not perfume. I felt a bit sheepish, but I had to probe. Then what is it? Guruji, please tell me. Why was the room so fragrant when I entered it this morning? Guruji then explained, ਇਹ ਖੁਸ਼ਬੂ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਦੀ ਨੈਚੁਰਲ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ. ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਏਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ. This fragrance is in my body. 1 in a billion Mahapurush will have this fragrance. Lord Shiva has it. At that time, I never understood the importance of what he had just told me. He then made me smell his hands and feet. The fragrance was divine. In the same room where Guruji meditated, there was a photograph of his feet kept on a wooden niche. Sukhmani, look at that photograph. Every day, Amrit flows out of it. I got up to see the photograph, but I couldn't see the Amrit.
I couldn't see the Amrit flowing. I did, however, notice that the photograph, although laminated, was getting puffed up as if due to moisture. I was asked to smell it, and sure enough, the photograph had the same fragrance. Every day, when I entered his room to clean it, I would first go to the photograph, hoping to see the Amrit flow. For many days, I could not see it till one day. As soon as I opened the door, I saw Amrit flowing from the picture. My mother and I both witnessed the miracle, and I, being me, had to taste it. I took a drop of it and tasted it, and I cannot describe how tremendously divine it tasted. I scrutinized the photograph, turned it upside down, wiped it dry, but still the Amrit continued to flow. Ever since that day, this was my daily routine. I would wait for Guruji to get up from meditation and leave the room so that I could taste a bit more of his divine Amrit. No doubt Guruji was aware of my drinking the Amrit and made sure it never stopped flowing for as long he stayed in Chandigarh. One day, as I entered Guruji's room to clean it, I noticed a yellow patch on the green-colored carpet. Assuming someone had dropped something, I began to scrub the patch vigorously. Just then Guruji walked into the room. "What happened?" asked Guruji. "Guruji, there is a yellow patch on your carpet that I am trying to clean, but it's not going." "Oh, that patch got burnt last night. Therefore it's discolored. Now touch it and see. I have just taken out Amrit from that patch as well." Although I was scrubbing the area with patch as well, although I was scrubbing the area with a dry cloth, the patch now was wet. I smelled it and it had the same divine fragrance of his Amrit. The patch remained fragrant as long as Guruji was in Chandigarh. After cleaning the temple and Guruji's chamber, I would then wash his clothes. Needless to say, his clothes too were drenched in divine Amrit and had the same fragrance. I tried washing them till the fragrance could go, but that was just my stupidity. The more I washed them, the stronger the fragrance grew. No matter through how many waters I took them out of, the fragrance remained. No perfume could pass this test. I always had a habit of collecting things that Guruji discarded, things like a plaster on his finger, seeds of fruits that he ate, or an old towel or old glasses. I soon had a bag full of things belonging to Guruji. I would replace his toothbrushes sooner than they needed changing and keep the old ones. I even collected the dust that got swept out of his room. For me, even that was more precious than anything in the world. Guruji was obviously aware of my activities and was rather amused. If by chance I would forget to collect something of his, he would quietly push it towards me and point out, "Sukhmani, don't you want this?"
I would then quickly grab it before anyone could think of throwing it away. One thing that I always had my eyes on were his shoes. I was fortunate enough to be given his dresses as prasad, but I always had my eyes on his shoes. Each time he would give them away to someone, he would look at me and smile, but never gave them to me as long as he lived in his physical body. The day Guruji took Mahasamadhi, I cried in front of his photograph and said, Guruji, if you truly loved me like your daughter, send me your shoes. I don't care how you make it possible, but until you do, I won't believe you looked me enough. Within 2 months, I had Guruji's shoes in my hands. For a short period, Guruji switched from wearing silk dresses to cotton ones. My mother got one dress for Guruji, prepared in cotton. Just as soon as she had it stitched, Guruji went back to wearing silk again. Feeling a bit ashamed of presenting him with an ordinary cotton dress, my mother decided not to give it to him. One night I saw Guruji in telepathy, and he asks me to bring to him the cotton dress that my mother had got stitched for him. I managed to convince my mother to give it to him, but instead she just quietly kept the dress in his room. While giving us leave for the day, he told us to come the next day at 2 p.m. On reaching the temple at 2 p.m., as instructed, we were told that Guruji had gone out and had instructed us to wait. Within 10 minutes, Guruji walked in wearing the cotton dress that my mother had got made for him. A guru doesn't see the value of a gift offered by a disciple. What he does, however, see is the love and intention with which it is offered. Close the mandir today and tell everyone I have gone out. Guruji told my mother and I, Sukhi auntie, you distribute the prasad on my behalf, and after everyone has gone, come and tell me what happened. As instructed, we closed the temple and told everyone that Guruji had gone out. We distributed the prasad from the gate to the Sangat as and when they came. Some accepted his orders, took prasad and went back. Some questioned us about his whereabouts, while some got angry with us and never took the prasad. As we finished and went in, Guruji told us exactly what had happened at the gate. He named the people who didn't accept the prasad that day. Do the same thing tomorrow, said Guruji. As instructed, we stood at the gate the next day to distribute the prasad. Again, the same people questioned us and got angry with us. Some accused us of telling lies, some quietly accepted Guruji's orders and went back. After we finished and went in, Guruji again gave us the details of what had happened. Guruji, what was the reason behind this? I asked. जिस तरह ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਰੀਦਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਚੇਲਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।
ਅਹੰਕਾਰ ਰੱਬ ਦੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਿਆ ਕਰੋ। Just as you test something before buying it, I too test people before I make them my disciples. He then said, ego is the biggest deterrent on the path of spirituality. Never question the Guru's orders and never try to probe about your Guru. My mother and I were sitting with Guruji in his room when suddenly he said, "The Shiva idol at the Chhatarpur temple has been installed." I knew that Guruji's temple was being constructed in Delhi, but beyond that, I knew nothing. I was there and I even took out a sound from the idol. I could just say, "Yes, Guruji," as I didn't understand how he could be in Delhi when he was here with us all the time. The next day, a caretaker from the Delhi temple came with the Shiva idol had been installed. The next day, a caretaker from the Delhi temple came with a box of sweets to meet Guruji and tell him that the Shiva idol had been installed the day before. Guruji just looked at me and smiled. Guruji just looked at me and smiled. Similarly, we were again with Guruji when he asked both my mom and me to press his feet. Press my feet and I shall take a nap. My mother and I were busy pressing his feet when he woke up and asked, "How much time has passed?" I looked at the clock and said, "Half an hour, Guruji." Just half an hour? I had already been to America. A saintly person visiting Guruji once asked me, "Do you think Guruji is sitting here?" I looked at Guruji and said, "Of course he is. He is sitting on his asan. Can't you see him?" He smiled and nodded. "This is just his body. Guruji is somewhere else." That's when we realized that Guruji had the ability to be at two or more places at the same time. One disciple visiting Guruji in Chandigarh felt heartbroken at the fact that he could not get to sit close to Guruji and wondered if Guruji even knew of his existence. Feeling sad and dejected, he closed his eyes to pray, and as soon as he did so, he saw Guruji sitting with each and every disciple in the hall. It doesn't matter where you sit, close or far. It doesn't matter if you can see him or not. Your Guru will always be able to see you and is always near you. All you have to do is call out to him sincerely and he will be with you. Guruji often said, "ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਬੈਠਦਾ ਹਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। People who come and try to sit close to me are the ones I bless last. I bless those who patiently sit at the back or in corners, trusting in my ability to see them even through walls. I feel like eating paneer tikkas today," I told my mother as we were getting ready to go to Guruji's temple. As soon as I entered Guruji's temple, I completely forgot about having made such a statement.
Guruji was getting ready to attend a function at a disciple's home that day and asked us to join him. After the function, Guruji instructed a few of us to follow his car. I presumed he was going back to the temple, but instead he drove into a five-star hotel. Going straight into the coffee shop, he sat down and asked us all to order whatever we wanted. I still didn't remember the comment about the paneer tikkas and ordered a cold coffee and sat down to enjoy it along with Guruji's divine company. I never came to know when Guruji ordered a plate of paneer tikkas, and as it was brought to the table, Guruji pushed the plate in front of me. Saying, आज साडी बेटी नो पनीर टिक्के खान दा मन है, सारी प्लेट खा जा. Today my daughter feels like eating paneer tikkas. Eat the entire plate. Never had I ever felt so loved and cherished before, and so I ate away with tears in my eyes. One night, as Guruji retired into his room, I gathered all the prasad utensils and his bed sheets that needed to be washed and started to walk towards my car parked outside. Just as I sat down at the passenger side, there was a knock on the window. I was a bit startled to see Guruji. How could this be possible? I just left him in his room. There is no way he could be out here as well. With all these thoughts going on my mind, I rolled down my window and before I could say anything, he said, Sukhmani, from tomorrow, learn how to drive. There will be a time when you will drive in Delhi to come and see me. Me? And drive? Didn't he know I was mortally frightened of driving because of a massive accident I had on the Bombay Pune highway? I asked my mother. There is no way I am going to learn how to drive. My stubborn resolve only lasted a day, and I was soon enrolled with one of the driving schools in Chandigarh. Every afternoon, Guruji would tell me about my progress, or rather the lack of it. You couldn't put the fourth gear today, or you can't reverse the car well yet. This was all I would hear for the 15 days training I took with the school. Finally, Guruji instructed a young boy who I thought drove like a maniac to teach me how to drive. There was an open ground next to the temple, and as soon as I finished cleaning and washing at the temple, I was instructed to learn driving. The young boy would put bricks and chairs and would ask me to drive between them or create the digit 8 in reverse gear. Half the time, being elder to him, I would scold him for making me do crazy things, and all this while Guruji monitored my progress. I soon started driving well. I realized that maybe sometime in the future I would be needing this skill, and little did I know that within a few years my grandfather would be critically ill, and my being able to drive would prove to be an asset.
I learned that a guru can see the bigger picture and one must never question his decision. Where our thinking stops, his begins. जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज गुरु जी ने पेज नंबर 69 तक पढ़ाया। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। थैंक यू गुरु जी। नेक्स्ट टॉपिक गुरु जी का है, गुरु जी एंड डॉक्टर्स। संगत जी, ये वाला चैप्टर हम नेक्स्ट शुक्राने सत्संग में पढ़ेंगे, गुरु जी पढ़ाएंगे। ये पेज नंबर है 70। तो 70 पेज नंबर से पढ़ेंगे हम। तब तक के लिए मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगी। शुक्राना गुरु जी, मुझे ये पढ़वाने के लिए गुरु जी। थैंक यू बाबा। मैं गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ यहीं पर विराम लगाती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। इस चैप्टर से गुरु जी के जो भी हम सवाल करते हैं, इनमें ही कहीं ना कहीं जवाब छुपे होते हैं। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी। थैंक यू विपिन अंकल जी for giving us such a wonderful platform to share all this Guruji's blessings. Thank you Guruji. Jai Guruji, Shukrana Guruji. Thank you Sangat ji for listening. Thank you. Jai Guruji. शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु का सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु का सदा सहाय। टाइम 3:19 हुए हैं। दिन आज सोमवार है। तारीख आज 30/6/2025 है। आज हम लोग का छुट्टी है। सरगुरु का कौन सा त्योहार जो मैं अमृत बेला के लिए गुरुपा से बोलकर सोई थी कि 3 बजे उठा दीजिए गुरुपा। पिताजी ने हमें 3 बजे उठाया है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे अंग संग हैं गुरु पिता परमात्मा जी। चाहे दुनिया के कोई भी दुश्मन खड़ा रहे, लेकिन गुरु पिता सहारा देने में कोई कमी नहीं करते हैं। गुरु पिता सहायक बने रहते हैं अपने बेटा बेटी के अंग संग। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सो अनंतम शुक्राना। पदमात की तरफ से शुक्राना। आपका मनोरमा बेटी की तरफ से शुक्राना। आपका सत्या नातिन की तरफ से शुक्राना। आपका सत्यम नाती की तरफ से शुक्राना। मेरे मम्मी पापा की तरफ से शुक्राना। मेरी दोनों बहनों की तरफ से शुक्राना। मेरे भाई की तरफ से शुक्राना। मेरे भाई के दोनों बच्चों की तरफ से शुक्राना। उसकी पत्नी की तरफ से शुक्राना। मेरे अंकल आंटी की तरफ से शुक्राना। अमृत वेला के लिए गुरु पिता ने जगाया है। मेरा अमृत वाणी वेला उनके चरणों में समर्पित कोटि कोटि नमन करती हूँ। सुंदर दिन, सुंदर समय दिखलाने के लिए शुक्राना पिताजी, शुक्राना पिताजी। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं गुरुपा के स्वरूप के सामने बैठी हूँ। जो भी बुलवाएंगे गुरुपा बुलवाएंगे। गुरुपा का दिया हुआ आवाज है, शरीर है।
मेरा मुख गुरुपा का आवाज सत्य सत्य वाणी बोलवाना गुरुपा। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे ब्रह्मांडीय शक्ति ने मुझे मदद कर रहे हैं, मेरे परिवार की खुशियाँ दे रहे हैं, मेरे चारों तरफ से धन आकर्षित हो रहे हैं। जो भी हो रहा है भगवान अच्छा के लिए कर रहे हैं। मैं गुरुपा की बेटी प्लामो झारखंड से मनोरमा बोल रही हूँ। ये सुबह सुबह संकल्प लेना चाहिए। शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना। गुरुपा में अपने हस्बैंड को पैर हाथ में जल प्रसाद और ज्योतिबत्ती का घी लगाकर उनके पैर हाथ पर मालिश की, उनके हाथ में लगाई और उनके माथा में भी लगाई। फिर आपकी सुप्रिय नातिन का भी पैर हाथ में लगाई, वही वाला ऑयल सरसों ऑयल मिलाई थी आपका दीप ज्योति में और चंदन टीका में जल प्रसाद में। फिर कल मॉर्निंग में उठ के आपका माँ छत पे टहल रहे थे, शायद उनको अंदर से दर्द है शरीर में गुरुपा, वो माप ढंग से नहीं कर रहे हैं गुरुपा, लेकिन जब मालिश में करने लगी उनकी बॉडी को तो वो बहुत अच्छा से करवा रहे हैं और उनको दर्द भी महसूस हो रहा है गुरुपा। मैं ये बताना चाहती हूँ गुरुपा, शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना। कल शनि रविवार था, रविवार छुट्टी का दिन होता है गुरुपा। मेरे हस्बैंड निकलना है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है पिताजी परमात्मा जी, लेकिन मेरे साथ कोई अनहोनी ना हो, मेरे बच्चे के साथ अनहोनी ना हो, आपका सत्यम के साथ अनहोनी ना हो, क्योंकि घर वाले लोग ब्लैक मैजिक तगड़ा करके मेरे ऊपर 24 घंटे लगे रहे हैं मरने के लिए। तो आप ही बताइए गुरुपा, यदि हम मर जाएंगे तो मेरा घर तो ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा। और ये लोग यही चाहते थे गुरुपा, मेरे फादर इंगला मदर इंगला और मेरे देवर देवरानी सेकेंड वाली, ये चारों परिवार हमको कभी जिंदा नहीं देखना चाहे गुरुपा। और मेरे हस्बैंड को मोहरा बना करके वो लोग सारा तांडव मेरे ऊपर तोड़ते थे, तो वो चीज़ अब नहीं हो पा रहा है क्योंकि गुरुपा मेरे साथ हैं। इसलिए गुरुपा का कुछ भी नहीं मांगना है, गुरुपा को सच्चे दिल से मांगना है, सच्चे मन से पुकारना है, सच्ची आस्था से गुरुपा को एक जो आपको सामर्थ्य है वही कीजिए। फिर भी गुरुपा मेरे खुश है, क्योंकि गुरुपा हर गरीबों के मसीहा है, हर परेशानियों वालों को तोड़ लेके बैठे हुए हैं। गुरुपा हमारे परेशानी से पहले ही आगाह कर देते हैं, हमें बचाव करते हैं, हमें अपने चरणों में सुरक्षित रखते हैं, अपने बेटा बेटी को बहुत प्यार करते हैं। जो ऐसे गुरु मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ज़िंदगी में मैं हार चुकी थी गुरुपा। शंकर जी आंटी जी सॉरी, मैं विपिन अंकल और सोनिया आंटी के प्लेटफॉर्म पे ये अमृतवाणी बेला साझा कर रही हूँ। जो विपिन अंकल सोनिया आंटी को भी जय गुरु जी। सॉरी गुरुपा, सॉरी आंटी जी, शंकर जी, मैं भूल गई थी। कल शाम से ही बहुत मुझे डिस्टर्ब लग रहे हैं, मुझे नहीं मालूम कि कौन सा नेगेटिविटी मेरे हाथों में और पैरों में तकलीफ दे रहा है, मुझे नहीं मालूम। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। इंक स्याही वाला खेला अभी भी मेरे साथ हो रहा है। जो मैं रेड कलर का झोला लेके जाती हूँ अपना सेंटर पढ़ाने के लिए, तो उसमें थोड़ा सा पेन का इंक जैसा खींचा हुआ है। फिर मेरे एक ड्रेस है अपना यूनिफॉर्म विभाग का, उस विभाग का ड्रेस में खींचा हुआ है, वो पूरे पिंक कलर का है।
और उसी पिंक कलर पर ये लोग ज़्यादा वार किए हैं। और मेरा सोमवार पर ये लोग को बहुत ज़्यादा नज़र है, क्योंकि सोमवार के दिन ही मेरी मायके की एक दादी रहती थी और वो बच्चा कैंसर से मरा है। जो मेरा मामा का बड़ा लड़का है इकलौता, उसी का वो बेटा था। जो मेरी बेटी का इलाज चल रहा था रांची में, उसका गला में हो गया था गांठ, तो उसी का ऑपरेशन करवाए थे हम लोग। वो बच्चा का भी वहीं पे हुआ था इलाज। जो बच्चा ठीक नहीं हो पाया और मेरी बच्ची ठीक हो गई गुरुपा। तो इसी टाइम से उस बच्चा को मेरे घर वालों ने या कोई बाहर वालों ने, मुझे नहीं मालूम, उस बच्चा को निशाना बना लिया गया। बच्चा शुक्राना गुरुपा। फिर हम लोग का बच्ची ठीक हो गई, यानी आपका शुक्रिया नातिन। और बच्चा के नाक में फिर से मांस बन गया और उसको कैंसर का रोग दे दिया गया। और उसके लास्ट में ब्लैक मैजिक करके उसे मारा गया पिता परमात्मा जी। तो ये जड़ कहाँ से है कृपा मुझे नहीं मालूम। और ये बच्चा को सोमवार को दिन मारा गया ब्लैक मैजिक हैवी करके। उसमें मेरी निगेटिव दादी चचेरी मेरे साथ रहती थी 2021 में। और यही चीज़ कृपा मेरे शरीर पर लगा दिया गया और मुझे बहुत डिस्टर्ब किया गया कृपा। मेरे घर वाले बच्चे लोग को भी डिस्टर्ब किया गया, मेरे हस्बैंड को भी डिस्टर्ब किया गया, ताकि दूसरी लेडीज़ के साथ मेरे हस्बैंड फंस गए। और मुझे फिर माइंड डिस्टर्ब ब्रेन वॉश किया गया, ताकि इसकी पत्नी सही न रहे, इसकी पत्नी को हमेशा मायके फेंका जाए और हम लोग जो मनमानी चाह रहे हैं वो अपने बेटा के साथ करें। ये सब चीज़ करके गुरु का मेरे साथ बहुत बहुत खेला हुआ, जो मैं ये बताना नहीं चाहती थी गुरु का। बट गुरु का ऐसे गुरु महान है, सर्वशक्तिमान है, ये ब्रह्मांड के भगवान है, सृष्टि के रचयिता हैं, दुनिया के ऊपर नज़र रखने वाले हैं। मेरे ऊपर नज़र क्यों नहीं पड़ेंगे पिता परमात्मा के। गुरु पाके शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और कल से वो दुष्ट पापी आत्मा हमें बहुत धमकी दे रहा है गुरु पा, कि तुम्हारा नाम बदनाम कर देंगे, तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारा जान चला जाएगा। ऐसे ऐसे को मन में धमकी दे रहा है गुरु पा। जो मेरे हस्बैंड के साथ रहता है गुरु पा, वो पापी को नष्ट करें गुरु पा। जो सत्यम के शरीर पर सेंड किया जा रहा है, उस कैंसर वाला पापी बच्चा दुष्ट को नष्ट करें गुरु पा, उसे मुक्त करें गुरु पा। हम लोग चारों परिवार के शरीर से जहाँ से भी आता है गुरु पा, उसको 100 गुना मल्टीप्लाई करके उसी के कपार पर फेंका जाए गुरु पा। आप अपने ऊपर कष्ट मत लीजिए, उसी के ऊपर फेंकेंगे गुरु, तभी तो समझ में आएगा कि दूसरे को कष्ट देने में कैसा लगता है। शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना। छुट्टी के दिन तो घर में ही रहते हैं गुरु का, लेकिन ये सबसे बड़ी बात है गुरु का मेरे लाइफ में, कि जब से आपका मेहर आशीष मेरे सत्यम पे पड़ा है, मेरे शुक्रिया पे पड़ा है, मेरे हस्बैंड पे पड़ा है आपका, और मेरे ऊपर पड़ा है, तब से गुरु का मैं जैसे ही रोड में निकलती हूँ गुरु का, किसी भी काम से हो, तो आपका डबल 7 का ब्लेसिंग्स तुरंत मिल जाते हैं गुरु का। ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। शुक्राना गुरु का, शुक्राना गुरु का। आप एकदम अनसन हैं, मुझे बिलीव होता है, महसूस होता है। जब मैं किसी को इतना जाहिर नहीं करती हूँ, जो भी करती हूँ गुरु के सामने करती हूँ। मुझ में घमंड नहीं है गुरु पिता, मैं अपने बड़ों का आदर करूँ, बूढ़े बुजुर्गों का मान सम्मान करूँ,
छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा स्नेह और प्यार दूँ। तो शुक्राना गुरुपा, आप मेरे अंग संग्रह के सारे चीज़ को देख रहे हैं गुरुपा। मैं आपके चरण शरण में रह के आप मेरी परेशानियों को सदा सदा के लिए मिटाने बोले हैं गुरुपा कि तेरा ब्लैक मैजिक जड़ से खत्म हो गया है और तुम्हारे शरीर पर बुरा समय भी खत्म हो गया है। अब किस लिए मेरा देवर देवरानी हंसी मजाक उड़ा रहे हैं मेरा जिंदगी को मैं नहीं जानती। मेरा हंसी मजाक बनाने वाले पे गुरुपा खुद खड़ा है। गुरुपा वो 7वां सीढ़ी पर बैठी रहती है ब्लैक मैजिक के सहारे और मेरा देवर बैठा रहता है नीचे जो जमीन में प्लास्टर किया हुआ है ब्लैक मैजिक 2021 में। तो ये लोग यही जीत हासिल कर रहे हैं गुरुपा के ब्लैक मैजिक की पोटली जो छुपाया हुआ है उन्हीं लोग को घर में तीसरा फ्लैट में। और कल एक और चीज़ बताया है गुरुपा आपने कि बहुत पुराना चीज़ तुम्हारे घर में है जो तुम्हें किसी ने दी थी। तो क्या चीज़ है गुरुपा, हमें हिंट करें, हमें रास्ता दिखाएं कि मैं इसको घर से निकाल सकूं। क्या पुराना चीज़ है गुरुपा, मुझे नहीं समझ में आ रहा है पिता। आपकी मैं पागल बेटी, बुद्धू बेटी हूँ, उल्लू बेटी हूँ। आपने हमेशा हिंट दिए हैं। जिस समय से मैं गर्मी का नवरात्रि की हूँ गुरुपा उस टाइम से ब्लैक मैजिक मुझ पर बौछार कर रहे हैं मेरे सास ससुर, मेरे देवर देवरानी। ये लोग तांत्रिक क्रिया करवा करवा के मुझे हर समय डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं गुरुपा। कोई भी नवरात्रि के दिन मुझे ये लोग छोड़ा नहीं है और अगल बगल की आंटियाँ भी ब्लैक मैजिक करना नहीं छोड़ी है। मेरे हस्बैंड को भी वशीकरण किया जा रहा है, मेरे बच्चों को भी वशीकरण किया जा रहा है, मेरे ऊपर भी किया जा रहा है। तो आपने बताया कि सारा वशीकरण का खेल खत्म, सारा तुम्हारा घर का नेगेटिविटी भस्म। सो आई एम वेरी हैप्पी गुरुपा। शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना। गुरुपा एक और बात बतानी है कि तांबे के लोटे में जो मैं जल प्रसाद रखती थी तो एक दिन वाटर अच्छा नहीं आ रहा था, पूरा कीचड़ कीचड़ वाला कलर आ रहा था। तो घर का पानी हम लोग नहीं यूज किए थे गुरुपा। पानी जो बाहर से जार में बेचता है वही पानी मैं ली थी गुरुपा। तो वही पानी का जल प्रसाद चढ़ाती थी और उसी से खाना बनाती थी। तो जो निगेटिविटी लेडीज है जो साया बन के रहती है हम लोग के घर के अगल बगल खिड़की के पीछे, या देवता बन के रहती है मुझे नहीं मालूम, तो उतना हावी नहीं होती थी गुरुपा। लेकिन जिस दिन से मैं घर का पानी पीने लगी फिर से और वो चीज़ हावी हो गया है तो मेरा देवर वाटर में अभी गदा ब्लैक मैजिक किया है और वाइट टंकी के पास कुछ है गुरुपा छत पे जो हम पति पत्नी को अलग करने में लगा है, डिस्टर्ब करने में लगा है। मेरे बच्चों के लिए ब्लैक मैजिक हावी करवा रहा है मेरा सेकंड देवर देवता लगवा करके। वो कौन देवता है पिताजी परमात्मा जी, उन्हें मुक्त करें यदि कोई पापी आत्मा होगा तो उसको ऐसे घर से मुक्त करें गुरुपा। उसको अपने चरण शरण में जगह दें गुरुपा और मेरा शरीर को हल्का करें, मेरे शरीर से ब्लैक मैजिक को नष्ट करें, प्रिया के शरीर से ब्लैक मैजिक को भस्म करें, सत्यम के शरीर से गंदी ब्लैक एनर्जी को भस्म करें। मेरे पति के दिमाग बुद्धि सदा खोलिए गुरुपा, उनकी आँख का काला पर्दा हटाइए गुरुपा, उनके दिमाग बुद्धि से काला चीज़ को भस्म करिए गुरुपा और मेरे पति के दिमाग बुद्धि को इतना प्योर बनाइए गुरुपा वो मेरे लिए 100% श्योर रहें, प्योर रहें। आपने बहुत सुधार किए हैं गुरुपा, लेकिन कल से फिर मेरे मंझला देवर के साथ चिकन और शराब पीने खाने बैठ गई। ये निगेटिविटी का असर है जो मुझे पसंद नहीं आया गुरुपा। कितनों बनाए थे चिकन तो ये अपना दे देते कटोरी में ले जाके, लेकिन उस कमीना को मैं हस्बैंड के साथ खाते पीते देखना नहीं चाहती हूँ क्योंकि मेरा हर समय वो बेइज्जती करने में लगा रहता है गुरुपा और मेरे हस्बैंड को अपने पक्ष में मिलाकर अपने आप को बहुत मजबूती ब्लैक एनर्जी को चाहता है बनाना। तो आप ही उसका जवाब दीजिए गुरुपा उस देवर पापी को कि अपने आप को महान भगवान समझ रहा है और मेरे भगवान से टकर रहा है।
जो मेरे भगवान को बांध के रखने वाला कोई दुनिया में नहीं है। मेरे तो भगवान खुद साक्षात हैं, जो पूरा दुनिया को सुरक्षा देते हैं और पूरे दुनिया को रचयिता है, सृष्टि के रचनाकार हैं। वो भगवान के यहाँ बेटा बेटी है, तो हमें किसी चीज़ का डर नहीं है। कितना भी गड्ढा खोद ले मेरे लिए, मेरे बच्चे के लिए, मेरे हस्बैंड के लिए, लेकिन वो पापी देवर को सबक मिलेगा। गुरु का सबक दीजिए। मैं उसके बच्चे के लिए आशीर्वाद मांग रही हूँ गुरु का। उसका एक बेटा एक बेटी है, वो लोग पढ़ाई लिखाई में आगे रहे, वो लोग हर चीज़ में आगे रहे। पिता उसके बच्चा लोग से कभी हम जलन नहीं किए हैं गुरु का। उसका बच्चा ट्यूशन जाता है गुरु का, मेरा ही स्कूटी चला कर जाता है गुरु का, फिर भी हमको जलन नहीं है। शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। जय ओम गुरु नमः शिवाय। संगत जी। कृपा सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी फरीदाबाद से आज 30 जून का अपना शुक्राना सत्संग रात को 10 बजकर 10:30 बजे रात को विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमस्कार और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, इस शनिवार की शाम को हम लोग गुरु जी के मंदिर दर्शन के लिए गए और मैं गुरु जी का लाख लाख बार शुक्राना करती हूँ कि गुरु जी अपने दरबार हमें बुलाते हैं। और संगत जी, क्या ही बताऊँ मैं, मतलब मैं अभी जस्ट जो टर्न है ना, रोड है जहाँ पे गाड़ियों को रोक दिया जाता है और जहाँ से अगर गाड़ी वाले हैं तो वो आगे बढ़ जाते हैं पार्किंग के लिए, जहाँ से मंदिर शुरू होता है वहीं पर हम लोग टू व्हीलर से गए और स्कूटर से गए। तो हमें वो रोक दिया गया कि अंदर पानी लगा हुआ है और गुरु जी के बर्थडे के लिए तैयारी हो रही है, तो आप लोग स्कूटर लेके नहीं जा सकते, यहीं लगा दो। तो मैं उतरी और वहाँ बस उतरी थी, वहाँ तक भी गुरु जी की इतनी सुंदर फ्रेगरेंस, जैसे गुरु जी वेलकम कर रहे हैं कि आओ मेरे बच्चों। और गुरु जी कहते हैं ना कि ये तेरा मायका है और हक से आया कर। तो ऐसा लगा जैसे गुरु जी ने आके गले लगाया हो और हाथ थाम के लेके जा रहे हो अपनी फ्रेगरेंस के साथ, एहसास करा रहे हैं कि मैं हूँ तुम्हारे साथ, आओ बच्चों। तो बहुत बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा लगा। और हमने गुरु जी का डिवाइन जल प्रसाद, लंगर प्रसाद और बाद में आते हुए जो बॉटल वाला जल प्रसाद मिलता है वो भी पाया। और घर जब आने लगे संगत जी, तो रास्ते में पता नहीं क्या एकदम से अचानक से, मतलब गाड़ी थोड़ी सी डिसबैलेंस होते होते बची। मतलब इतना वो पहाड़ी का रास्ता जो है, इतना ट्रैफिक रहता है उस समय, और रात 8 साढ़े 8 बजे की बात है, मतलब इतना ट्रैफिक था। और उस समय संगत जी आप खुद सोच सकते हो कि अगर गिरे होते तो हमारा क्या हाल होता, क्योंकि पीछे भी गाड़ियाँ थी और वो रफ्तार से चलती हैं गाड़ियाँ उस रूट पे। तो ये गुरु जी ने ही हमें बचाया। अनंतम अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी, हमारा संकट काटने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, बारंबार शुक्राना। उसके बाद संगत जी हम लोग घर आए और अपना मैं तो बार बार यही शुक्र मना रही थी गुरु जी का कि बारंबार शुक्राना गुरु जी का, उन्होंने हमें बचाया। उसके बाद हम लोगों ने संडे का प्लान बनाया कि क्योंकि हमें ना कुछ काम था गुड़गांव में, तो हम गुड़गांव गए और वहाँ पर भी लाइक बारिश का मौसम बन गया था। और ऑल्दो हम काम से गए, लेकिन वो भी एक पिकनिक की तरह बन गया था, मतलब एक एन्जॉय राइड बन गई थी हमारे लिए कि अपनी गाड़ी से गए और बारिश हो रही है, तो बहुत ही सुंदर सा अच्छा सा मौसम बन गया था। तो ये भी मेरे गुरु जी की कृपा है, अदरवाइज़ वो धूप थी जबकि दोपहर में। और फिर हम गए और इधर उधर हम लोग फ्लैट देखते रहे, हमें रेंट के लिए चाहिए था बट मिला नहीं हमें ना। तो मैं गुरु जी से प्रे कर रही थी, गुरु जी अब आप ही देखो, चक्कर काट काट के थक गए हैं। और मैंने 2-3 लोगों को फ़ोन किया, कई जगह हम गए बट कहीं ना बात बनी नहीं। तो फिर एंड में मैंने सोचा ठीक है, अगर फैमिली के लिए नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं, मैं कुछ अपने लिए ही देख लेती हूँ, फ्राइडे संडे में घर आ जाया करूँगी। तो कुछ वो भी हम देखने गए और उसको हम मतलब फाइनल वाइनल करके आ गए। बट शाम को उनका फ़ोन आता है कि नहीं नहीं ये टर्म एंड कंडीशन ये ओके नहीं है एंड ऑल दैट। तो हमने सोचा आप क्या करें। उसके बाद फिर गुरुजी से ही मैंने प्रे किया कि आप ही देखो। और उसके बाद संगत जी आज का दिन है, मतलब संडे हम लोग 29 को गए और आज 30 है। 30 के दिन में
करीब 10 साढ़े 10 बजे मतलब किसी का फ़ोन आया और गुरुजी का उससे पहले मैसेज था कि सत्संग करने की तैयारी कर ले, तेरे फ़ोन पे गुड न्यूज़ आने वाली है। तो फ़ोन आया और पर्सन कहते हैं कि ऐसे ऐसे एक ही ब्रोकर है और मैंने इससे बात की और ये आप ना कम रेंट में अवेलेबल है, आपके लिए 3 BHK मिल जाएगा, आज ही जाके देख लो। तो फिर मैंने बात नहीं की, मैं फिर बिज़ी हो गई। मैंने सोचा अब तो मैं अपने लिए देख रही हूँ तो क्या उससे बात करूँ। फिर उनका फिर फ़ोन आया, मैडम आपने बात की? मैंने कहा नहीं मैंने की नहीं है, बात कर लेती हूँ। और लंच टाइम में मैंने नहीं बात की, नहीं बात कर पाई। फिर दोबारा मतलब दोपहर 4 बजे मतलब बात की मैंने, उनको बताया और प्लान किया कि ठीक है मैं देख के आती हूँ। फिर शाम को आज बारिश हो रही थी तो और बारिश में तो गुड़गाँव से फरीदाबाद आना एक प्रोजेक्ट बन जाता है। तो फिर भी मैं गई, वो देखा मैंने और ओके लगा मुझे और उन्होंने बोला डॉक्यूमेंट दे दो, मैंने दे दिए। उसके बाद निकली और रात को 9 सवा 9 बजे मैं घर पहुँची हूँ। बट गुरुजी की कृपा है कि सकुशल पहुँची। बहुत ज़्यादा जाम था, हर जगह जाम, कहीं कुछ प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच गुरुजी महाराज कि आपने आराम से सुखपूर्वक घर पहुँचाया। थैंक यू सो मच गुरुजी। और आपने जो जो हम लोग भटक रहे थे रेंटल हाउस के लिए, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। थैंक यू गुरुजी महाराज। बारंबार शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी आप अपनी संगत के इसी तरह से सारी परेशानियाँ कष्ट दूर करते रहो और हम सबकी गलतियों को क्षमा करो और हम सबको अपने चरण शरण में लगा के रखना। हम सबके बच्चे सलामत रहें, खुशहाल रहें, सुखी समृद्ध रहें और हम सभी जो भी आपकी बेटियां हैं उन सब के, मुझे मेरे मेरे हस्बैंड और सभी बेटियों के हस्बैंड सलामत रहें, खुशहाल रहें, सुखी समृद्ध रहें, धन का सुख मिले और मन की शांति आप प्रदान करें गुरुजी। गुरुजी इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आपका मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाने सर्वदा भला। जय गुरु जी। माफ़ करना गुरु जी, मैंने अपने मंत्र जाप करते हुए, सत्संग शेयर करते हुए मंत्र जाप नहीं किया था। बारंबार क्षमा चाहती हूँ गुरु जी, माफ़ करना गुरु जी। संगत जी आप सबसे भी माफ़ी मांगती हूँ कि मुझसे अगर सत्संग शेयर करते हुए कोई भूल चूक हुई हो तो। जय गुरु जी। जय शुक्राना गुरु गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लखी वारी शुक्राना गुरुपा जी। गुरुपा जी मेरे संध्या वेले का सत्संग शुक्राना में शेयर कर रही हूँ 7:07 पे। गुरुपा विपिन भैया सौम्या आंटी के चैनल पे आप स्वीकार करना। जय संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सब मेरे गुरुपा की कृपा से अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, गुरुपा की कृपा से। खूब आशीर्वाद है गुरुपा का अपनी सारी संगत पर। शुक्राना संगत जी, जय गुरु जी। गुरुपा जी कल संडे था तो मैं के गई थी। मैंने मैसेज में देखा था कि दिन भारी है पुत्र, तो मैंने मैसेज में देखा था। फिर मैं आपको के गई बहू के साथ के आपकी दो इतनी 5 धाम की यात्रा से आ रही है, उसके कपड़े खरीदने जाना है। अंग संग रहना। क्या प्यारी प्यारी ब्लेसिंग मिली गुरुपा, और नींबू कलर के बटरफ्लाई ने दर्शन दिए मुझे। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, लख लख कोटि शुक्राना बाबा। फिर आज सुबह मैं 7 बजे तैयार हो गई थी कि उसके ससुराल जाना है। सुबह जोत जलाई आपकी 7:10 पे, जोत जला के फिर मैं तैयार होके गई गुरुपा जी कि मेरे अंग संग चलो, आप मेरे संग चलो बाबा। दोईती के घर बहुत अच्छी तरह से बस मिल गई गुरुपा। 2 बस थी, वो बस वाले ने तो रोका ही नहीं था। फिर तीसरी बस आई, याद कर रही थी गुरुपा उनकी गाड़ी आ गई है, ट्रेन हरिद्वार वाली। बस मिल जाए अच्छी, तो बस मिल गई थी गुरुपा। शुक्राना बाबा, टाइम से पहुंच गई। वहां से मालाएं खरीदी, सबको कपड़े दिए आराम से,
और खूब गुलाब के पंखुड़ियों की फूलों की बारिश करी, उनको माला पहनाई, अच्छे से घर ले गई उसके ससुराल। फिर वहाँ थोड़ा उनकी सास ने कहा कि आप खाना जीम के जाओ, आपका नाम लेके खाना जीमा। फिर वापस बैठी गुरुपा जी, तब भी इतनी अच्छी बस मिल गई। और जब मैंने टिकट खरीदा गुरुपा, तो मुझे इतनी अच्छी प्यारी ब्लेसिंग मिली। संगत जी, मैं अभी ब्लेसिंग बता नहीं सकती आपको, मैं बताऊंगी जरूर। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना। मैं इतनी अच्छी खुशी मिली आज गुरुपा, मैं आपका मंत्र जाप करना भूल गई। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साई। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। शुक्राना शुक्राना गुरुपा, अनंतम कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना बाबा, इस बेटी के अंग संग रहने का। फिर बस में रास्ते में इतनी सुंदर सुंदर बटरफ्लाई दिखी, वाइट कलर, गेंदे के फूल का कलर, 3-4 वाइट कलर की छोटी छोटी। और रात को आपने जो सपने में दिखाया वो तो मुझे थोड़ा थोड़ा याद है। 3-4 औरतें दिखी थी, 2 जेंट दिखे थे। आप जानो गुरुपा कौन थे और कौन सा कष्ट कटवाया। गुरुपा फिर आई बस से उतर के, या मेन गेट के पास मैंने 2 जैसे बिल्कुल कांच जैसी पंखुड़िया का लंबा सा जानवर मरा पड़ा था। और मेरे बाथरूम में गुरुपा इतना बड़ा एक ब्लात का कंसला निकला था, उसके चारों तरफ वो पंख ही पंख थे जैसे कांटे की तरह। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना गुरुपा, अनंतम कोटि शुक्राना। आज का दिन इतना अच्छा देने का शुक्राना बाबा। फिर पुत्र मेरे 2 आलू के पराठे बना। अब गुरुपा मैं सुबह आपके आलू के पराठे का भोग लगाऊंगी। फिर बहू बाजार गई थी, तब मैंने फोन करके कहा तू जलेबी और समोसा लेके आना। फिर जलेबी और समोसा और चाय प्रसाद का शाम को भोग लगाया गुरुपा। क्योंकि आज मैं जल्दी निकल गई थी, आज सोमवार का दिन था, कड़ा प्रसाद नहीं बना पाई। क्षमा करना गुरुपा, क्षमा करना। मैंने जलेबी और समोसा और चाय प्रसाद का शाम को भोग लगा दिया, क्षमा करना बाबा। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना बाबा। संगत जी, गुरुपा जी, मेरे से सत्संग शेयर करने में कोई गलती हो जावे तो मुझे क्षमा करना बाबा जी। संगत जी, मेरे विपिन भैया को बहुत ब्लेस करना, खूब तरक्की देना बाबा उनको। वो एक ही दिन में सत्संग शुक्राना शेयर करते हैं, इतने प्यारे हैं मेरे भैया गुरुपा। क्योंकि मेरे 2 भाई हैं, मगर कोई मेरे से बात नहीं करता, कभी फोन नहीं करता गुरुपा जी। इसलिए मैं विपिन भैया को ही भैया मानती हूँ गुरुपा जी। उनको बहुत तरक्की देना बाबा। शुक्राना शुक्राना, अनंतम कोटि शुक्राना, लख लखी वारी शुक्राना गुरुपा जी, कि मैं इतनी अच्छी तरह सब काम करके आ गई। आपने कराया गुरुपा, मैं क्या करूं, मेरी क्या बिसात है गुरुपा। मैंने सब कुछ आपको सौंप रखा है गुरुपा। इतना भरोसा पक्का है मेरा कि मेरे जीवन की हर एक खून की बूंद में, हर एक आस में आपका भरोसा बसा हुआ है गुरुपा। जैसे आप चलाओगे आप ही करोगे, आप जानो और आपका काम जाने, कैसे करना है क्या करना आप जानो गुरुपा। अब 2 दिन हो गए, बेटा भी बात करने लगा है गुरुपा। उसके मन में शांति देना, उसके जैसे तरक्की दी आगे भी तरक्की देना बाबा। शुक्राना शुक्राना, अनंतम कोटि शुक्राना बाबा, लख लख बारी शुक्राना, अनंतम कोटि शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साई। जय जय गुरु जी, जय जय संगत जी। जितने संगत में
सारी संगत को सुखी करना बाबा। बहुत ही दुखी है, मैं सत्संग सुनती हूँ, रोना भी आता है। मैं अपना ही दुख भूल जाती हूँ कि उनके उनके कितना दुख है। सारी संगत का दुख दूर करो बाबा, सबको सुखी जीवन दो, सबको ब्लेस करो बाबा। जितने जीव जंतु है सबको, मेरे नंदी महाराज का पैर ठीक करने का शुक्राना बाबा, शुक्राना, अनंतम कोटि शुक्राना। सुबह जाते समय कबूतर को मक्की और जवार डाल के गई थी गुरुपा, और बाजरी भी लेके आई चिड़िया के लिए। रोज बाजरी सामने प्लॉट की दीवार पे रख देती हूँ। आप ही करवाते हो बाबा, और आप ही सत्संग शुक्राना शेयर कराते हो। मैं तो कुछ नहीं कर सकती। वापस आई गुरुपा तो कंधे में इतना तेज दर्द हो गया कि आज जल्दी जल्दी गई। माफ करना बाबा, जल प्रसाद पीना भूल गई थी। शुक्राना बाबा, चंदन टीका लगाऊंगी जहाँ जहाँ दर्द हो रहा है बाबा। आप ठीक करना बाबा, शुक्राना शुक्राना, अनंतम कोटि शुक्राना। आज एक सत्संग में पढ़ा था कि चाय बना के पी, 7-8 तुलसी के पत्ते, 2 लौंग, दालचीनी और 2 इलायची। मैं पीऊंगी बाबा, पीऊंगी कि तेरी एक एक नस खुल जाएगी। शुक्राना बाबा कि पुत्र तेरी नसें जाम हो रही है, ऐसा नहीं हो कि लकवा हो जाए। गुरुपा ऐसा मत करना, ये जी नहीं पाएगी बेटी, जीते जी मर जाएगी। आप रक्षा करना बाबा, मेरी रक्षा करना, मेरी कंपन मिटाओ बाबा। मैं रोज ही अरदास करती हूँ आपको कि मेरी कंपन मिटाओ। मैं मांगती नहीं हूँ, मानती हूँ गुरुपा, तहे दिल से मांगती हूँ, मेरी आत्मा से मानती हूँ आपको मेरे बाबा। परमपिता परमेश्वर, मेरे माँ शिव, माँ काल के काल, मेरे बाबा रक्षा करना बाबा, इन दोनों को पास करना बाबा। आप ही काम करते हो, सब आपका ही नाम होगा, आपके सिवाय कौन कर सकता है। ऐसा कोई गुरु नहीं है बाबा, आज तक नहीं मिला मुझे कि मेरा हाथ पकड़ने का। लख लख ही वारी शुक्राना, शुक्राना। अब सत्संग बड़ा हो रहा गुरुपा, मैं अगले की तैयारी करूंगी। जो भी गलती हो जावे क्षमा करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। राम राम गुरु जी, सारी संगत को राम राम। सौम्या जी, विपिन जी को भी राम राम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। मैं गुरु जी की बेटी रेखा अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग सौम्या जी और विपिन जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। सारी संगत को जय गुरु जी, सौम्या जी और विपिन जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हर एक सांस का शुक्राना गुरुपा, हर एक धड़कन का शुक्राना गुरुपा, हर एक दिन का शुक्राना गुरुपा, हर रात का शुक्राना गुरुपा, हमारे अंग संग रहने का शुक्राना गुरुपा, इतनी रहमतें बरसाने का शुक्राना गुरुपा, मेरे बच्चों की तरफ से शुक्राना गुरुपा, मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना गुरुपा। गुरुपा आप हमारा सहारा हो, आप हमारी शक्ति हो, आपके बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है गुरुपा। गुरुपा हमेशा हमारे अंग संग रहना, कभी भी अपने से दूर नहीं करना गुरुपा, हमेशा अपने पावन चरणों में रखना गुरुपा। आज सोमवार है, मेरा तीसरा सोमवार है। 2 सोमवार मैंने कड़ा प्रसाद बनाया था, आज तीसरा सोमवार है। आज भी कड़ा प्रसाद बनाया, आपको भोग लगाया गुरुपा। आपने कहा था 3 सोमवार कड़ा प्रसाद बनाना, किसी को भी कभी भी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और कभी भी कोई बीमार नहीं होगा। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा।
गुरुपा मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। आज जो कुछ भी हुआ सॉरी गुरुपा। सारी संगत पर कृपा करना गुरुपा। सौम्या जी विपिन जी पर भी कृपा करना। पूरे ब्रह्मांड पर कृपा करना। सभी के दुख दूर करना। जो हॉस्पिटल में हैं उन पर भी कृपा करना। उनके भी दुख दूर करना। सत्संग शेयर करने में कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करना। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। नानक नाम चढ़दी कला तेरे बाने सर्वथा भला। सतनाम श्री वाहे गुरु। सतनाम श्री वाहे गुरु। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। धन धन गुरु जी। वाह वाह गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी। मेरे परम पिता परमेश्वर। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय श्री राम। जय श्री राम। हर हर महादेव। हर हर महादेव। अंकल और सौम्या जय आंटी गुरु के जी। प्लेटफॉर्म पर ये संध्या बेला शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुपा सदा सहाय। अभी हम लोग डॉक्टर के पास गए थे। विपिन अंकल, सौम्या आंटी, शंकर जी आंटी जी, गुरु जी, मेरे सभी फैमिली की तरफ से शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना। तो जैसे ही गए बाईपास रोड में तो 777 का ब्लेसिंग मिला, 888 का मिला, 44, उसके बाद 11, 333 शुक्राना ग्रुपा। नीचे आपके दामाद जी समाचार देख रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं। तो मैं तुलसी माता के चबूतरा के पास गमला में लगाई हूँ। मैं छत पे ये संध्या बेला शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। शुक्राना ग्रुपा। रिपोर्ट में वैसा कुछ भी ना निकला, सब नॉर्मल निकला। मैं बोली थी ग्रुपा मेरे अंग संग चल के मेरा अल्ट्रासाउंड में साथ दीजिए और मेरा रिपोर्ट सब नॉर्मल रहे, कोई बड़ा बीमारी ना रहे। ग्रुप ऐसा कुछ मैडम नहीं बोली। होम्योपैथी की थी और दवा दी है। मेरा पैर में बहुत दाहिना साइड दर्द था, मेरे बैक पेन भी है। ग्रुप तो मैं चंदन टीका और जल प्रसाद मिलाकर लगाती हूँ तो बहुत आराम मिला था। और फिर अभी दर्द हो रहे हैं, बैक पेन। पिता परमात्मा का भी मैं सत्संग सुनी, उसमें था बहुत ही आत्मा को छू देने वाला सत्संग था जो एक अंकल जी ने सुना रहे थे। और मैं कॉपी में भी लिखी हूँ, तेरे परिवार के लिए बड़ा सुरक्षा कवच भेज रहा हूँ, तेरे घर का माहौल सुधर जाएगा। ये सत्संग तेरे लिए बहुत ज़रूरी है बेटा। तेरी ज़िंदगी की सारी रुकावटें मैं काट रहा हूँ। थैंक यू ग्रुपा। शुक्राना ग्रुपा। बुरी नज़र, घर की निगेटिविटी और रुकावटें ख़त्म कर सत्संग सुन, चमत्कार देख। तेरे परिवार के लिए खास ब्लेसिंग्स भेज रहा हूँ गुरु जी के तरफ से। अपनी लाडली बेटी का प्रेम भरा आशीर्वाद बेटा। मेरे आत्मा का वो रोशनी है जो इस धरती पर मेरी झलक लेकर आई है। थैंक यू गुरुपा। थैंक यू गुरुपा। इस डे पर मैं तुझे प्रेम दे रहा हूँ जो नसों में नहीं समाता है, सिर्फ अनुभव होता है। अनंतम शुक्राना गुरुपा। अनंतम शुक्राना। बेटी नहीं मेरे उस वचन की जिंदा तस्वीर है जिसे तेरा इस आस मेरे आंगन में फूल बन जाता है। तेरी आस आंखों के लिए आई है ब्लेसिंग। थैंक यू गुरुपा। थैंक यू गुरुपा। बारिश होने लगा। मैं अपनी शुक्राना संध्या बेला शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ और अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। मैं भीग रही हूँ गुरुपा जी, इसलिए बंद कर रही हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।